Hello everyone, my name is Anu. Today we'll read the next lesson of class 3 EVS, Our Friends Animals. So students, you must have seen so many animals around you, yeah? So in this lesson we'll talk about different animals. Let's start this lesson. Our Friends Animals. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. तो बच्चों यहाँ पे एक स्टोरी है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी कि एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक से वो लोग चौंक गए, उनको एक आवाज आई, टक टक करके एक आवाज आई। अब वो साउंड जो थी वो सीलिंग फैन से आ रही थी, मतलब फैन से आई वो, कि फैन से कुछ टकराया। कल्याणी ने कहा कि अरे देखो देखो, एक बर्ड को चोट लग गई है। और पीटर फिर उठा जल्दी से, उसने उस बर्ड को अपने हाथों में उठा लिया। इट वॉज इन पेन, और जो बर्ड थी वो उसको दर्द हो रहा था, वो उसको चोट लग गई थी। Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. Peter lovingly patted the bird. They held the bowl to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. Navjot told all the children to move back. They noticed that the bird was trying to fly. In a while, the bird flew away. So जो नवजोत और अली थे वो जल्दी से जाके पानी लेकर आए, एक बॉल में पानी लेकर आए। उन्होंने बोल को उस बर्ड की बीक के पास रखा। बर्ड ने थोड़ा सा पानी पिया, फिर उसने अपने विंग्स फ्लैप किए, हिलाए उसने अपने विंग, और उसके बाद उसने नवजोत ने कहा कि सब बच्चे पीछे हो जाओ। और जो बर्ड थी वो उड़ने की कोशिश कर रही थी। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे, और जो बर्ड थी वो थोड़ी देर में उड़ गई थी। Next day, the children saw a bird circling above them in their classroom. The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. अच्छा, तो अगले दिन फिर क्या हुआ कि एक बर्ड उनकी क्लासरूम में चक्कर लगा रही थी, ऊपर उड़ रही थी। तो वो लोग पहचानने लगे कि क्या ये वही बर्ड है जिसको कल चोट लग गई थी। तो उन्होंने जल्दी से फैंस बंद किए कि कहीं उसको दोबारा से चोट ना लग जाए, और वो सब क्लैपिंग करने लगे। So students, in this was a very short story. Now what happened? Put the sentences in the correct order. You have to reorder these sentences and put them in correct order कि पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ। तो सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ? The bird hurt itself with the fan. On the second number, Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. Third number पे क्या हुआ कि Peter lovingly patted the bird. And number 4, the bird flew away. And number 5, the children saw a bird circling in their classroom. Okay, so you'll do it. Well, now there is another short story. Shankar was very happy. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. He started spending his free time with them. One morning, Shankar was woken up by the cat's cry. Do you know how a cat cries? He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. One of the kittens were missing. He went outside and found Malini patting a kitten. Shankar called Malini into his courtyard. Malini saw the cat crying. Right? तो यहाँ पे शंकर की स्टोरी है। वो बहुत खुश था कि उसके घर पे एक कैट थी, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था, 4 किटन्स को। कैट के बेबीज को किटन कहते हैं, यू नो दैट। और वो उनके साथ, उन बच्चों के साथ खेलता था, अपना फ्री टाइम स्पेंड करता था। वन मॉर्निंग, एक दिन क्या हुआ कि शंकर जब उठा तो उसको कैट के रोने की आवाज आई। अब वो जल्दी से भाग के गया कि देखता है कि कैट क्यों रो रही है। तो वो कैट किस लिए रो रही थी? वो अपने 3 बच्चों को तो अपने पास कर्डल किए हुई थी, अपनी गले लगाई हुई थी, बट जो एक किटन था वो मिसिंग था। और फिर वो जल्दी से भाग के गया उस किटन को ढूंढते हुए इधर उधर बाहर। तो उसने देखा कि मालिनी जो है एक लड़की, वो किटन को पैट कर रही है। वो उसको पैट करना मीन्स उसकी बॉडी पे हाथ फेर रही है। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कॉर्टयार्ड. मालिनी सॉ द कैट क्राइंग. अब शंकर ने उस मालिनी को अपने कॉर्टयार्ड में बुलाया और मालिनी ने देखा कि वो कैट रो रही है.
व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? अब आपको क्या लगता है कि मालिनी ने क्या किया होगा आगे? क्या उसने उस किटन को, कैट को दे दिया होगा? यस, सो मालिनी वुड हैव रिटर्न द किटन टू इट्स मदर। उसने उस किटन को उसकी मम्मी को दे दिया होगा। नेक्स्ट देयर इज अनदर शॉर्ट स्टोरी। भोली इज मीनूज काउ। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। One day a speeding scooter hit Bholi and hurt her leg. The wound was bleeding heavily. अब ये एक भोली की काव है, सॉरी भोली जो है वो काव है मीनू की, और मीनू भोली को रोज घास खिलाने के लिए खेतों में ले जाती है। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर, एक दिन एक बहुत तेजी से एक स्कूटर चला आ रहा था और उसने वो भोली को वो टक्कर मार दी एंड उसकी पैर पे चोट लग गई। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हेवली, और उसके जो पैर पे चोट लगी उस घाव से बहुत खून बह रहा था। वॉट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? अब मीनू की फैमिली में लोग क्या करेंगे? अब उसकी काव को चोट लग गई है तो क्या करेंगे वो? दे वुड वॉश द वुंड विद वाटर एंड अप्लाई सम मेडिसिन, है ना, वो हो सकता है उस वुंड को साफ कर दें और उसके ऊपर कुछ मेडिसिन लगा दें, और अगर ज्यादा वुंड लग गया है तो वो उसको डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? वेटरिनरी डॉक्टर बोलते हैं। जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेट कहते हैं। उनके डॉक्टर्स अलग होते हैं। इंसानों के डॉक्टर्स अलग होते हैं, जानवरों के डॉक्टर्स अलग होते हैं। और जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको वेटरिनरी डॉक्टर बोलते हैं, शॉर्ट में वेट बोलते हैं। तो अगर उसको ज्यादा चोट लगी है तो उसको वेट के पास भी लेके जा सकते हैं। ओके, सो नाउ एक और छोटी सी स्टोरी है। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। अब यहाँ पे पिक्चर्स हैं, आप देख रहे हो कि चंदू धोबी है, वो अपने उसका एक डोंकी है, वो उसका बहुत ध्यान रखता है, बिकॉज डोंकी उसके लिए बहुत सारा काम करता है, इसलिए वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। आप देखिए क्या क्या करता है, वो पिक्चर्स बनी हुई है। तो सबसे पहले चंदू बाथ्स हिज डोंकी, अपने डोंकी को नहलाता है। फिर चंदू गिव्स हिम ग्रास टू इट, उसको खाने के लिए हरी घास देता है। चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, वो उसको पीने के लिए वाटर भी देता है। एंड चंदू डेकोरेट्स हिज डोंकी विद फ्लावर्स, और वो चंदू जो है वो डोंकी को फ्लावर से डेकोरेट भी करता है। ओके, नेक्स्ट, डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन? तो आप बता सकते हैं, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन आंसर योरसेल्फ, कि आपके घर में आपके आसपास कोई पेट है किसी के पास? तो डॉग्स तो सबके पास होते हैं, सो यू कैन से यस आई हैव अ पेट डॉग। व्हाट नेम हैव यू गिवन टू द पेट? यू कैन टेल योर नेम लाइक टाइगर। व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज, आप क्या करते हैं जब आपका पेट हंग्री होता है? हंग्री होता है तो आप क्या करते हैं? आई गिव माई डॉग बिस्किट्स एंड मीट, आप उसको खाने के लिए खाना देते हैं। फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब उसको ठंड या लगती है या गर्मी लगती है तो क्या करते हैं? आई रैप माई डॉग इन अ ब्लैंकेट इन कोल्ड वेदर, तो आप उसको कोल्ड वेदर में ठंड लग रही है तो उसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। टीज्ड बाय समवन, कोई उसको छेड़े तो क्या करते हैं आप? आई आस्क द पर्सन नॉट टू टीज माई डॉग, मैं उस पर्सन को बोलूंगा कि मेरे डॉग को टीज ना करें। हर्ट, आई टेक माई डॉग टू, अगर उसको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? उसको वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ओके, now next, we keep some pet animals at home, we look after them too. In the table below are the names of such animals. Complete the table. अब यहाँ पे आपने कुछ एनिमल्स के नेम हैं और आपने बताने कि वो हम उनको क्यों रखते हैं। Why do they give us? What do they give us? हम उनको क्यों रखते हैं इन पेट एनिमल्स को? जैसे डॉग को क्यों रखते हैं? क्योंकि डॉग्स जो है इट गिव्स सिक्योरिटी अगेंस्ट थीव, चोरों से हमारी रक्षा करता है। काउ क्या करती है? काउ इट गिव्स मिल्क। हॉर्स क्या करता है? इट पुल्स द कार्ट। ऑक्स क्या करता है? प्लो द फील्ड, खेत जोतता है। हेन क्या करता है? इट गिव्स एग्स। फिश इट इज ईटन, कुछ लोग फिश को खाते हैं। रैबिट क्या करता है? वी लव इट। एंड हनी बी इट गिव्स हनी। सो इन सारी चीजों के लिए हम उनको पेट रखते हैं। और फिश को सिर्फ खाते ही नहीं है, उसको कुछ लोग सजाते भी हैं अपने घर में, है ना, फिश पॉट रखते हैं, उसमें दे डेकोरेट देयर हाउस विद फिश ऑल्सो। Okay, next we have is bird bath. Take a small earthen pot having a wide mouth. Tie the pot with a rope and hang it as shown in the picture. Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house. Pour water in it every day. Observe which birds come to drink water.
अब आप देख रहे हो जैसे पिक्चर में बना हुआ है कि एक मिट्टी के बर्तन में उसको लटका दिया है और उसमें पानी डाल सकते हो ताकि जो बर्ड्स हैं वो पानी पी सके, उसको बर्ड बाथ कहते हैं। ठीक है, लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. देर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग्स. कौन सी ऐसी चीजें जो ह्यूमंस को भी चाहिए और एनिमल्स को भी चाहिए? सो दीज आर एयर, वाटर एंड सनलाइट. ओके, let's see next. Here you must have included food in your list. We know that we eat a variety of food. Similarly, animals too eat different kinds of food. Have you ever fed any animal or seen anyone else feeding any animal? If yes, then fill in the table. अब आप ये बताइए कि कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या खाते हैं. Animals and the food they eat. Like dog, it eats meat and biscuits. Cat, it take milk and fish. Pigeon, grains and bread crumbs. Parrot, chilies and guavas. Hen, bajra, wheat, maize, jawar, ragi, rice, bran. ये सब खाती हैं. Why do you feed these animals? Well, animals also need food to live, so we feed these animals. Which animal did most children feed? ज्यादातर डॉग ही पैट होता है तो सब मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फीड द डॉग. व्हाट डिड दे फीड? और उनको क्या खिलाते हैं? ज्यादातर बिस्किट खिलाते हैं, डॉग के बिस्किट्स. ओके ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. डू यू हैव दीज एनिमल्स इन योर लिस्ट? फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट. ओके, तो ये सारे एनिमल्स क्या क्या खाते हैं आप बताइए. रैट क्या खाती है? रैट क्या खाता है? चपाती और ग्रेन्स. कॉकरोच, फूड लेफ्ट ओवर, स्मॉल इंसेक्ट्स. पिग, everything from garbage. Bat, blood, nectar from some flowers. Crow, everything as they are omnivorous. Squirrel, eat everything as they are omnivorous. Monkey, everything as they are omnivorous. Spider, small insects. Lizard, insects. So ये सारे animals जो insects हैं ये खाते हैं. Now who eats what? Match by drawing lines of different colors. One example is shown. तो यहाँ पे बताना है कि आपने कौन क्या क्या खाता है. जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है कि गोट ग्रास भी खाती है, चपाती फ्रूट वेजिटेबल भी खाती है और चपाती भी खाती है. ऐसे आपने बाकियों को मैच करना है. जैसे स्नेक को देखें हम, स्नेक क्या खाता है? लिजर्ड खाता है और रैट खाता है. एंट क्या खाती है? जो लिजर्ड है वो एंट को खाती है. और लिजर्ड मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स को भी खाती है. स्पैरो जो है वो चपाती फ्रूट वेजिटेबल भी खाती है, चपाती भी खाती है. और ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग तो सब कुछ खाता है, चपाती फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाता है. राइट? ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू मैच एवरीथिंग. ओके, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ a web of life. Okay, let's see the next. Write the names of the animals you have touched, you have not touched, but you can touch, you cannot touch. आपने टच किया होगा स्पैरो को, डॉग को, कैट को, रैबिट को. आप टच कर सकते हैं एलिफेंट को, हॉर्स को, कैमल को, काउ को, बट आप टच नहीं कर सकते लायन को, स्नेक को, क्रोकोडाइल को, टाइगर को. Why? Because they are dangerous. They can eat you. We do not go near some animals for the fear that they may bite us, harm us, or eat us up. You have seen that there are some animals whom we can touch, right? And these often live in or our house or around us. If these, a few animals help us in many way. तो आप देखते हो कि बहुत सारे एनिमल्स को हमने टच किया है. कुछ को हम टच कर सकते हैं, कुछ को हम टच नहीं कर सकते. Okay, so now this is this is a short story also. Read this picture story है ये. और यहाँ पे क्वीन का गार्डन है वो. The gardener has brought mangoes from the queen's garden. जो गार्डनर है वो मैंगोज लेके आया है क्वीन के गार्डन में से. क्वीन का अपना पर्सनल गार्डन है, उसमें मैंगोज उगाए हुए हैं उसने, माली ने, और वो लेकर आया है. So many mangoes, good. वो कहता है इतने सारे मैंगोज, बहुत अच्छी बात है. तो वो कहता है योर मेजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट ऑफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम अप. वो कहता है इससे भी डबल मैंगोज होते अगर बर्ड्स ने उनको खा नहीं लिया होता तो. व्हाट डिड यू से? द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज. व्हाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इनटू द गार्डन? प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन. वो कहती है कि अच्छा तुमने बर्ड्स को आने ही क्यों दिया गार्डन में? वो कहता है मुझे माफ कर दो, आगे से मैं उनको नहीं आने दूंगा.
फ्यूअर मैंगोज देन द लास्ट ईयर, अगले साल क्या होता है, बहुत कम मैंगोज लाया वो. वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम ईटिंग द एंटरिंग द गार्डन, वो कहती है कि तुमने गार्डन में बर्ड्स को आने से क्यों नहीं रोका. वो कहते हैं कि मैंने रोका था उनको. आई स्टॉप देम योर मेजेस्टी, आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज. वो कहती है कि हाँ मैंने तो उनको रोका था, मैंने एक भी बर्ड को नहीं आने दिया, पर जो इंसेक्ट्स थे वो मैंगोज को खा गए. सो आप देखिए अगर बर्ड्स नहीं होंगी तो इंसेक्ट्स ज्यादा हो जाएंगे, है ना. एंड दे कैन दे कैन ईट द मैंगोज अप. So if there had been birds, then they would have eaten the insects. We would not have lost so many mangoes. कहता है अगर वहां पे birds होती तो birds fruits तो खाती हैं पर वो insects को भी तो खाती हैं, इसलिए insects से बचा लेती वो fruits. But क्योंकि birds नहीं थी इसलिए fruits को insects खा गए. Right? So this was the lesson, students. Let's see the summary of the lesson. Animals also feel like us. They feel sad, happy, afraid, or anger. Animals are useful to us. We keep them as our pets in our homes. We take care of their needs and enjoy being with them. Different animals give us different useful things. Animals also give us their valuable service. A dog guards our house at night. Horses and donkeys carry loads and people. We should be sensitive towards our pets, and we should feed them properly. If they fall ill, we should take them to the veterinary doctor. A veterinary doctor treats animals. Okay, now let's see some questions, students. Why were the children in the class startled? The children were startled to hear the tuck sound. Who was hurt? A bird. Who picked up the bird? Peter. What did Navjot and Ali bring? Water. What did the children see the next day? They saw the bird was flying in the class. Next is write true or false against each statement. A cat had given birth to 5 kittens in the Shankar's courtyard. Is it false or true? It's false. उसने 4 kittens को birth दिया था, है ना. Shankar started spending his study time with the kittens. Study time बिताता था या free time? Free time. So it is false. The cat was crying because one of its kitten was missing. True. Malini was petting the missed kitten. True. Malini asked Shankar to play with kitten. No. Malini ने कोई शंकर को कहा खेलने के लिए. No, it was false. False. Fill in the blanks. Meenu called her dog as Bholi. Meenu took her cow to the field to graze daily. One day a speeding scooter hit Meenu's cow, and the dash was bleeding heavily. The cow's wound was bleeding heavily. People in Meenu's family took Bholi to the veterinary doctor. Okay, यहाँ पे cow की जगह wound आएगा D में. Okay. Now next are match the following. Pets should be treated well. Animals also need water and food like us. Plants and animals depend on each other for their survival. The parrots eat insects which harm fruits. One should not tease or hurt animals. Why do we keep pet in our houses? So we keep pet in our houses as they need love and care like us. Now here you have to write the food is eaten by the animals. Like parrots, they eat red and green chilies, guavas, fruits. Cow and buffaloes, they eat green grass. Dogs, they eat bread and meat. Cats, milk and fish. Donkeys, grass. Next, name any 4 animals you have touched. हम इसको already discuss कर चुके हैं. Dogs, cats, rabbits, fish. You can touch dog, cat, rabbit, cow. You cannot touch lion, tiger, snake, bear. Now name 2 animals who can bite us. जो आपको बाइट कर सकते हैं कौन से एनिमल्स है? डॉग बाइट कर सकता है, मंकीज भी बाइट कर सकते हैं, है ना. हार्म अस, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे स्नेक, लायन, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि लायन तो खा भी सकता है. ईटस, लायन, कोबरा, ये सब खा सकते हैं. टाइगर, बेयर, ये सब खा सकते हैं. सो नाउ मैच द फूड आइटम विद द एनिमल. अब कौन से एनिमल्स क्या क्या खाते हैं ये आपने मैच कर देना. लाइक दिस, काउ इट्स ग्रास, जो कैट है वो फिश और रैट खाती है, जो डॉग है वो दिस बोन्स को खाता है. फिर दिस इज
A parrot eats the fruits as well as the worms. Donkey eat grass and the bird eat grains. Right? So that's it, students. Thank you so much for watching the video and stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning. And please do not forget to like my video and subscribe my channel. Thank you.